Good morning, students. How are you all? Hanji beta ji, now your holidays mood should be over and it's time to come back again on your study mood because you have enjoyed a lot during 3-4 days. So beta, come back to your studies, and we were doing the chapter Money and Credit of Economics, and it is chapter number 3, and almost we have completed the main points of the chapter. Up to today's topic we have done about the money, the evolution of money, the modern forms of money, what is credit, what are the terms of credit, what are the sources of credit, how credit can be proved to be a boon or it is a curse for the poor. Then we studied about the loan activities of bank, what are the formal and informal sources of credit, and these things we have done in our last topic about the formal and informal credit and their differences. So beta, today we are going to start a new topic, and it is self help groups for the poor. Self help groups for the poor, and it is the concluding part of the chapter. So, first of all, focus on the learning outcomes at what we are trying to gain today from the today's topic. So, let's have a look on your learning outcomes. So, beta ji, after going through the today's topic, you will be able to explain the role of self help group. You will be able to identify the functions and advantages of self help group. You can focus on the need of expansion of formal sources of credit in rural areas. So, beta, these are the takeaways of today's topic. So, now be sincere and listen to the topic very carefully, because afterwards I am going to give you few questions on the same topic. So, let's come to the topic self help group. What is सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है बेटे? सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हैविंग सेम सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. दे मीट एंड सेव मनी रेगुलरली एज पर देयर एबिलिटी. तो बेटे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है 15 to 20 मेंबर्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है, जिसे हम स्वयं सेवी संगठन भी बोलते हैं. इसको हम स्वयं सेवी संगठन भी बोलते हैं. तो ये छोटा सा एक ग्रुप होता है जो कि कुछ लोग आपस में मिलकर बनाते हैं, और वो लोग जो होते हैं वो पास पड़ोस में रहने वाले या एक ही गांव में रहने वाले या एक ही कस्बे में रहने वाले कुछ लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे को अच्छे ढंग से जानते हैं. क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ये देखा था डेट द पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. द पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट, क्योंकि देखो ये अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ इट सो? वाई द पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट व्हेन देर आर सो मेनी बैंक्स? देन व्हाट इज़ द नीड कि वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज? तो बेटा जी, इसके आंसर में हम फर्स्ट पॉइंट तो ये बता सकते हैं कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. In rural India, banks are not present everywhere. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from the informal sources. So, to go to the bank and draw the loan from the bank is a very difficult task for an uneducated and a poor person, because no one is giving attention to a poor person in the bank. We all know that mostly banks are providing loans to the well to do persons. तभी तो वो होते हैं इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जो बैंक लेकर और बाद में बैंक का मतलब चुका भी नहीं पाते और फिर वो दूसरी कंट्रीज़ में भाग जाते हैं. तो हम ये देखते हैं कि बैंक्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें भी होती हैं. तो बैंक्स, एक तो बैंक हर जगह प्रेजेंट नहीं होते इन रूरल इंडिया, और अगर वो होते भी हैं तो बैंक से लोन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है बजाय कि इनफॉर्मल सोर्सेज से. इनफॉर्मल सोर्सेज में तो ये जाते हैं तो इनको जल्दी से लोन मिल जाता है, जो ये आपके पुअर लोग होते हैं इन रूरल इंडिया.
एज वी सॉ फॉर मेगा, मतलब जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था इसमें मेगा का, कि जो बैंक लोन्स होते हैं दे रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलैटरल्स. व्हेन यू गो टू द बैंक दे आस्क फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, दे आस्क फॉर द कोलैटरल, एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग any collateral, so it is the major reason which prevents the poor from getting the bank loan. The bank simply deny you the loan. The bank, if you are not having the collateral, if you are not able to fulfill the documentation, तो सीधा सा बैंक मना कर देती है लोन के लिए. लेकिन जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जैसे मनी लेंडर्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड वो क्योंकि उन बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं, एंड हैंस दे आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलैटरल. द बोरोवर्स जो कहते हैं, इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. मान लो कोई किसान है और उसकी ज़मीन है काफ़ी, लेकिन वो मनी लेंडर से लोन लेकर उसके ऊपर अपनी क्रॉप वगैरह उगाता है, और इन केस द क्रॉप फेल्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे द लोन एंड ही रिक्वायर्स मोर मनी ताकि वो आगे अपनी क्रॉप के लिए बीज वगैरह खरीद सके, देन अगेन ही विजिट द मनी लेंडर एंड द मनी लेंडर विलिंगली प्रोवाइड हिम द लोन विदाउट आस्किंग. यानी उसको अगर बिना रीपे किए हुए, पहले लोन को रीपे किए बिना उसको दूसरा लोन दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास ये ज़मीन है. However, the money lender charge very high rates of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrower. जो मनी लेंडर्स होता है वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता अपने पास ट्रांजेक्शन का, और उन गरीबों लोगों को बहुत ही हरासमेंट भी होती है मनी लेंडर्स के थ्रू. पर इन रिसेंट ईयर्स वी आर लुकिंग एट कि पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर. अब कुछ नए रास्ते बन गए हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों ने नए रास्ते ढूंढ लिए हैं. द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन ग्रुप इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको हम SHG भी कहते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो ये जो आइडिया है, इट इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलरली द वीमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल देयर सेविंग्स. वो अपनी सेविंग्स को, अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं. जो एक टिपिकल SHG होता है यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं. दे यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली. जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपस में मिलते हैं और अपनी एबिलिटी के हिसाब से सेव करते हैं. सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वी हैव टू सेव, इतने पैसे हमने बचाने. इट डिपेंड्स ऑन आ कैपेबिलिटी. The group charged interest on this loan, but this is still less than what the money lenders charge. Means members can take small loans from the group itself to meet their needs. अब वो जो 15-20 मेंबर्स का वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप करना होता है और जिसमें वो अपनी मनी को सेव करते हैं, तो अगर मान लो उन्हीं मेंबर्स में से किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है तो वो उधर से लोन ले सकता है, और वो लेता भी है. तो मेंबर्स जो हैं वो छोटे छोटे लोन अपने ग्रुप में से ले लेते हैं, और जो ग्रुप होता है वो उनको काफ़ी कम इंटरेस्ट चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू द मनी लेंडर. एंड आफ्टर ईयर और टू अगर ग्रुप रेगुलर होता है अपनी सेविंग्स में, तो इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक. और अगर मान लो कि ग्रुप जो होता है वो रेगुलर अपनी सेविंग्स करता है, तो वो इतना एलिजिबल हो जाता है कि वो बैंक से लोन ले सकता है. देन लोन इज सेंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर. तो जो बैंक इनको लोन प्रोवाइड करता है वो ग्रुप के नाम पे होता है. जो लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा वो इनको ग्रुप के नाम पर मिलता है, बिकॉज द मोटिव ऑफ द बैंक इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर. एज वी हैव रेड अबाउट द फंक्शंस ऑफ RBI एंड वी हैव सीन दैट द RBI इंस्ट्रक्ट्स द बैंक नॉट ओनली टू गेन मनी बाय गिविंग लोन टू द वेल टू डू वेल ऑफ businessmen and big people, but also to create self opportunities for the poor household also, self employment opportunities for the poor household also. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgage land. यानी छोटा छोटा लोन प्रोवाइड किया जाता है मेंबर्स को कि वो अपना जो ज़मीन का टुकड़ा है वो छुड़वा सकें, अपनी वर्किंग कैपिटल्स की नीड्स को पूरा कर सकें, जैसे अपने सीड्स खरीद लें, फर्टिलाइजर्स खरीद लें, रॉ मटेरियल खरीद लें, फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, जैसे किसी ने मशीन खरीदनी है, सिलाई मशीन खरीदनी है, हैंडलूम, कैटल्स. सो दीज आर द थिंग्स दे कैन ईजली मेट विद द मनी विच दे आर गेटिंग फ्रॉम द बैंक.
तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. द होल ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन. तो जो कुछ भी होता है उसका सारा डिसीजन जो ग्रुप लेता है. द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, कि लोन कितना ग्रांट होना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट क्या है, किस तरह से वापस करना है. दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर डिसाइडेड बाय द ग्रुप इटसेल्फ. Also, it is the group which is responsible for the repayment of loan. The group is responsible for the repayment of loan. Any case of non-repayment of loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. And this is not so that all the members are taking it very easily कि अगर कोई member जो है repayment loan का नहीं करता तो उसको बहुत seriously लिया जाता है. और इसी feature के कारण banks are willing to lend टू द पुअर वीमेन व्हेन दे ऑर्गेनाइज्ड इन एसएचजी. तो इसलिए जब बैंक्स भी विलिंगली इनको लोन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द रीपेमेंट ऑफ लोन, इवन दे आर नॉट हैविंग एनी कोलैटरल टू शो. तो आप ये देखो कि ये आप सिंपल इसकी फंक्शनिंग में हम देखते हैं कि 15 to 20 मेंबर्स आर देयर. Neighbors who met and save money regularly, saving up to 25 to 100 rupees. It depends on the capability of the members. They grant small loans to member. They does not ask for collateral, and any non-payment is seriously followed up by other members. तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि जो एसएचजी होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो दे हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, because most of the borrowers are not having the collateral and they are facing lot of problem because of this, and they are not able to get the loan from the bank. So it is their main feature of it is to help those borrowers. They can get timely loans from a variety of purpose and at reasonable interest rate. Now these borrowers are able to get the loan on time and even at an reasonable interest rate. Moreover, these SHGs are the building blocks of the organization of the rural poor, because not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues. देखो कितना अच्छा मकसद है इसका कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये सिर्फ लोन देने और लेने का काम ही नहीं करते, जबकि इनके यहाँ पर आपस में बाकी भी जो छोटे मोटे घरेलू मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन होता है, लाइक न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ. तो हम ये देखते हैं कि ये जो एसएचजी हैं, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, एंड we can say कि the main concern is about to give self employment opportunities to the women also. So we can easily say कि इसका जो ऑब्जेक्टिव ही है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर टू इनकलकेट सेविंग हैबिट्स इन कम्युनिटी, टू इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ वीमेन, टू जनरेट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव एक्शन, है ना, टू एक्सेस रिसोर्सेज. और इसके आप देख रहे हो एडवांटेजेस भी कितने हो रहे हैं कि इट इनकरेज रिसोर्स पूलिंग, इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर फंक्शनिंग. तो हियर वी कैन से कि व्हाट इज़ एसएचजी, कि एसएचजी क्या होता है और एसएचजी के फंक्शंस क्या होते हैं. तो एसएचजी इज़ अ हेल्पिंग हैंड फॉर वीमेन. अब ये बात दिमाग में रख लेनी है कि जो एसएचजी होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, बिकॉज नॉट ओनली डू द एसएचजी हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, इनकी जो ये डिस्कशन है वो इनको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, वो इनको एक प्लेटफॉर्म बोल देते हैं टू स्पीक आउट. सो इट जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी among the women, as well as the women become confident and self-sufficient to take their decisions at their own. So this is the major advantage of this self-help group. तो बेटा अब आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो कि व्हाट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, एंड व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाउ डू दे फंक्शन, इवन दे अवेल लोन फ्रॉम द बैंक, और बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे इनको बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कोलैटरल, एंड विद दैट लोन दे क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वीमेन. तो यहाँ तक आपको पता चला होगा. देन सिंडिकेट बैंक भी हमने जो सुना हुआ है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट और मेजर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट वाज फाउंडेड बाय टीएमए पाई उपेंद्रा एंड वीए मानकीवा. और ये जो बैंक थी ये 2020 में कैनरा बैंक में मर्ज हो गई है,
और आपको मतलब कि दिस बैंक, द बैंक इज़ हेड क्वार्टर्ड इन द यूनिवर्सिटी टाउन ऑफ मणिपाल ऑफ इंडिया, एंड ऑन 1 April 2020 द बैंक मर्ज्ड इनटू कैनरा बैंक. इसके 95 रीजनल ऑफिसेज हैं डेट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड कंट्रोल बिजनेस operations in the various regions of the country. Why we are talking about this bank? Because it has worked a lot in the rural and semi-urban areas to provide the loan at very reasonable rates to the poor households, and it worked a lot for the upliftment of the poor people in the rural areas and semi-urban areas. So here, after talking about syndicate bank, you are having the example of uh, Grameen Bank of Bangladesh, and it is on your book also, Grameen Bank of Bangladesh. Matlab, this is one of the biggest success stories of reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, it started in the 1970 as a small project, and Grameen Bank in October 2014 has over 8.63 million members in about 81 villages spread across Bangladesh. I mean, we are talking about these banks because they worked a lot in the rural household and to connecting the villages and to providing the loan to the poor and rural household. So these borrowers have proved that not only, मतलब जो इसमें borrowers हैं, have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. इन्होंने ये साबित कर दिया इस तरह के बैंक्स ने और एसएचजी ग्रुप्स ने कि जो औरतें हैं वो एक मतलब सिर्फ मनी बोरो ही नहीं करती, बल्कि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी, वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करती हैं, एंड दे गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर वीमेन ऑल्सो टू मेक मनी एट देयर ओन एंड टू बिकम, अपने ऊपर अपने सेल्फ सफिशेंट वो बन सकें. तो ये देखो कि इसका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. तो इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन डेट आर अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, these millions of small people with their millions of small pursuit can add up to create the biggest development wonder. आप ये देखो कि इन आज के इस टॉपिक से हमें यही पता चलता है कि अगर इन गरीब लोगों को प्रॉपर लोन मिल सके, क्रेडिट मिल सके, वो भी रीज़नेबल रेट्स पर मिल सके, तो दे कैन क्रिएट वंडर्स, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द कोलैटरल एंड एसेट, बट दे आर हैविंग द पोटेंशियल टू कन्वर्ट दैट मनी मेनी फोल्ड्स, अगर उनको उनके अंदर वो काबिलियत है. तो ये अब आप ये देखो कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने भी अपने आप को प्रूव किया है इन दिस डायरेक्शन. एंड इन द लास्ट कम टू द कंक्लूजन. इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. इस चैप्टर में हमने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ा, हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम. No one side are the depositor who keep their money in the banks, and on the other side are the borrower who take loan from this bank. At one side people are there who deposits the money in the bank, and the other side borrowers are there who take loan from these banks. So economic activities require loan or credit, and credit, as we saw, can have positive impact or in certain situations make the borrower worse off. हमने क्रेडिट्स के भी दोनों इम्पैक्ट देखे हैं. एक तरफ तो ये क्रेडिट जो है वो लोगों को बहुत ही वेल ऑफ कर देता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और कुछ सिचुएशंस में वो बोरोवर की सिचुएशन को बहुत ही वर्स कर देता है. क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज. दीज कैन बी ईदर फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज, एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स. दोनों की टर्म्स अलग अलग होती हैं. एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव्स क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज. जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो रिचर हाउस होल्ड है, दे कैन ईजिली अवेल क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, वेयर एज द पुअर पीपल दे हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज. सो इट इज़ असेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीजेज, कि हमें फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट बढ़ाना चाहिए, सो डैट द डिपेंडेंस ऑन द मोर एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम्स लेस. ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए बैंक्स का, ताकि लोग ईजिली अवेल कर सके लोन फ्रॉम द बैंक्स, एंड देयर इज़ नो नीड टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज. ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और बोथ दिस स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. तो बेटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, अब ये आपने सम अप कर दिया है. आई हैव सम अप द चैप्टर कि वी शुड एक्सपेंड मोर एंड मोर बैंक्स
in the rural areas. So these rural peoples, they can take loans from the bank. They can just grow and develop themselves. एंड इन द कंक्लूजन पार्ट आप ये देख ही रहे हो, दीज आर द पॉइंट्स डेट हैव गिवन कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वी रिक्वायर लोन और क्रेडिट्स. एंड एट प्रेजेंट रिचेस सो पीपल जो हैं ज़्यादा फॉर्मल सोर्सेज का फ़ायदा उठा रहे हैं. एंड हमें क्या करना चाहिए कि टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को इंक्रीज करना चाहिए. मीन्स द पुअर शुड गेट मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. So this is all in this chapter. I think the chapter is quite interesting and you really enjoy the chapter if you have gone through it seriously. तो बेटे ये चैप्टर में से 5 मार्क्स के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू. मैंने आपको बता दिया कि इसमें से लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है. देन व्हाट इज़ क्रेडिट एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट का 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है. बट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स और कोलेट्रल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है कि हाउ क्रेडिट बिकम्स कर्स फॉर समवन एंड इट बिकम्स अ बून फॉर समवन, कि कैसे ये किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप साबित होता है. तो 2 आपको सिचुएशंस को क्रिएट करके इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है. तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट ऑफन कम्स. देन वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कौन सा होता है और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कौन सा होता है, इनके टर्म्स और कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है. देन इन द लास्ट एसएचजी ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एसएचजी ग्रुप्स क्या होते हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है. तो जो आज आपने सारा किया है ये आपने एसएचजी ग्रुप्स और उनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा है. And that's all in this chapter, and please go through the chapter, all the parts, please go through all the parts of the chapter. और उसको करने के बाद you can just have overlook on the book also. book को सामने रखो और इन वीडियोस को सुनो. तो each and everything I have described in the book, because I am keeping the book in front of me when I am delivering this lecture. तो मेरे पास सिर्फ आपकी बुक ही है जिसको देख के मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो बेटे, बी सिंसियर, डू हार्ड वर्क, have trust in God, and do your best. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.